भारत सिंतास معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے معاہدے کی تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت کی جانب سے رواں برس 2 مرتبہ بغیر پیشگی اطلاع پانی چھوڑنے سے دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی آئی۔ یہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ پاکستان تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے، اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھارتی آبی جارحیت پر غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ۔ بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ یہ اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے باضابطہ سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ بھارتی اقدامات پر پاکستان کو سیلاب اور خشک سالی کے خطرات سے دوچار ہونا پڑا۔ رواں برس جون اور اگست میں ثالثی عدالت نے سنتاس معاہدے کی حیثیت برقرار کر دی۔ اقوام متحدہ نے بھی بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی جانب سے تنازعات کے حل سے فرار عالمی قوانین کی نفی ہے۔ عالمی برادری کو سنتاس معاہدے کی مکمل بحالی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ بھارت کا طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی تھی۔ آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقہ نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پہلگام حملے میں پاکستان کی شمولیت سے متعلق بھی بھارت شواہد پیش نہ کر سکا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے سے براہ راست زد میں آتے ہیں۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پانی روکنا یا معاہدہ معطل کرنا غیر متناسب قدم ہے۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی کارروائی میں داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ داعش خراسان کا ترجمان خارجی دہشت گرد سلطان عزیز عزام گرفتار۔ پاکستان کی کارروائی نے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کر دیا۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی، کئی حملے ناکام بنا دیے۔ تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ۔ افغان طالبان رجیم میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے موقف کی تائید۔ یو این کی ہوش ربا رپورٹ میں افغان طالبان رجیم کی مکمل ناکامی، لاقانونیت اور افراتفری بھی بے نقاب۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں۔ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ قرارداد کی منظوری نو آبادیات، غیر ملکی تسلط اور بیرونی قبضے کا سامنا کرنے والے عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے عالمی برادری کی وسیع حمایت کی عکاس۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے لیے یہ قرارداد ان کے منصفانہ اور جائز حق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی اور وقار کی ان کی خواہشات پر عالمی توجہ کو مزید مرکوز کرتی ہے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد بھارت مخالف پرتشدد مظاہرے۔ مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ اہم سڑکیں بند، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں۔ عثمان ہادی کے حق میں نعرے، انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ مظاہرین کا قتل کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔
सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तकर्री गैर कानूनी करार दिए जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की। वजारत कानून इंसाफ ने मासूर जज को बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात, ML1 मंसूबे के अपग्रेडेशन पर गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ML1 मंसूबे में ताउन और पेशरफ्त पर एतमाद का इजहार। फरीकैन का कराची से रोहड़ी मंसूबे का संग बुनियाद जुलाई 2025 को रखने का इत्तफाक। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,72,674 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में तारीखी बहाली, जामशेरो प्लांट दोबारा फाल। प्लांट की बहाली से तकरीबन 200 अरब डॉलर की सालाना बचत हो सकेगी। सालाना टैक्स की मद में हर साल तकरीबन 3 अरब रुपए आमदनी का इम्कान। 5,000 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान के चीन और ईरान के साथ सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। तिजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम नस्ब कर दिया। जदीद स्कैनर्स महज 22 सेकंड में गाड़ी को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। जदीद स्कैनर्स के बायस कंटेनरों के इंतजार का दौरान या नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कन मोड़। पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। खुले मेन होल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले और तमाम अफसरान की निगरानी होगी। वजीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल की ब्रीफिंग। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम जारी। जंग बंदी के बावजूद 738 मरतबा खिलाफ वर्जियां की गई। ज़ालिमाना कार्रवाइयों में 394 फलस्तीनी शहीद, 1075 जख्मी हुए। गजा में इंसानी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। खुराक और तिब्बी इमदाद की किल्लत बरकरार। यूनिसेफ का भी गजा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दुबई में अंडर 19 एशिया कप, बारिश के बाईस सेमीफाइनल्स ताखीर का शिकार। पहले सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। अंडर 19 एशिया कप के मैचेस PTV नेशनल पर बराह रास्त। एशेज सीरीज एडिलेड में तीसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बर्थी के साथ बैटिंग जारी। ट्रेविस हेड की सेंचुरी। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी। एशेज सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। PSL 11 26 मार्च से 3 मई 2026 तक खेला जाएगा। लीग का 11वां एडिशन 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग छठे मैच में आज ब्रिस्बेन हीट और पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम मध्य मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 1:15 से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। स्पेनिश फुटबॉल कोपा डेल रे, रियल मैड्रिड ने रियल मर्सिया को 2 गोल से शिकस्त दे दी। फाते टीम की जानिब से कोचो हिर्नांडेज ने 1 गोल किया। 1 गोल रियल मर्सिया ने डिगो पिनियरो ने ओवन गोल की सूरत में तोहफे में दिया।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंध-पाक माहदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारतीय इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों को भारतीय आबी जारहियत पर ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती, ज़राअत और मईशत को शदीद खतरात लाहिक़ हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंध-पाक माहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया, जो बैनुल-अक़वामी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। We witnessed in April this year India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. उन्होंने बताया कि रवा साल दरिया चनाब के बहाव में 2 मरतबा गैर मामूली तब्दीलियां रिकॉर्ड हुई। भारत ने पेश की इतला के बगैर पानी छोड़ा और मुआहिदे के तहत लाजिम डेटा फराहम नहीं किया। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने जून और अगस्त 2025 में सिंध-पाक मुआहिदे को नाफिजुल अमल करार दिया। India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water, to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. India has consistently attempted to undermine the treaty in a systemic manner. नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग और सिंध-पाक मुआहिदे पर रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा पहलगाम हमले की मज़म्मत करता है और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर देता है। पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाबता इत्तला नहीं दी। पेशगी इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में शहरी इलाका निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई और मुतादिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुत्तला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत अपना दिफा का हक रखता है। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक के ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज़ अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। माहिरीन ने कहा कि भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुताखरत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने सिंध-पाक मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयाने की तायीद की है। माहिरीन ने सिंध-पाक मुआहिदे को हेल्ड इन एबेंस करने पर भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले से बराह रास्त जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंध-पाक मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदा उस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें नए मुआहिदे के जरिए इसे खत्म न करें। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मुआहिदाती कानून की मुअत्तली से मुतालिक दफात को वाज़ेह तौर पर बुरोकार नहीं लाया गया। मुआहिदे के तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। तनाज़ात का हल मुआहिदे में दर्ज तस्वीहे के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमज़ोर करार, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की तरफ से मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश करना कानूनी तौर पर गैर मुताल्लिक़ है। पानी रोकना या मुआहिदा मुअत्तल करना गैर मुतनासिब कदम है। पानी रोकने का बोझ बराह रास्त आम पाकिस्तानियों के हुकूक पर पड़ता है। डेटा तबादले में रुकावट और तस्वीहा जाती शिकों पर तनाज़ा मुआहिदे की रूह के खिलाफ है।
पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश के तर्जमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया। अल अज़ाम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। सुल्तान अजीज अज़ाम और सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल तरकी की गिरफ्तारी से तंजीम की ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी आई और वॉइस ऑफ खुरासान जैसे अहम प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स भी मुअत्तल हो गए। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं, जिससे सरहदी कशीदगी और जानी नुकसान बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का ये दावा कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द गिरोह मौजूद नहीं, काबिल एतबार नहीं। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन से टीटीपी की कार्रवाइयां पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी फौरी सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में पाकिस्तान में टीटीपी के 600 से जायद हमलों में बहुत से हमले पाकिस्तानी फोर्सेज ने नाकाम बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक टीटीपी ने अपनी हिकमत अमली में तौसी करके पाकिस्तानी और चीनी मंसूबों को भी हदफ बनाने का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश खुरासान ISIL-K को दबाया गया है, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। यह अफगानिस्तान के अंदर और बाहर शदीद खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों का जिक्र, पाकिस्तानी इदारों की जानिब से दाइश के अहम अनासिर की गिरफ्तारियां भी नोट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद अफगान बाशिंदों की वापसी ने अफगानिस्तान की मईशत और सर्विसेज पर दबाव बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी के बायस खित्ता अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम का मंबा समझता है। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी पर पड़ता है। अफगानिस्तान में मुतादिद बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरोह फ़ाल हैं और यह सूरत हाल इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। नतीजतन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन मुतासिर मुल्क है, जबकि अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क्स खित्ते के अमन के लिए बुनियादी रुकावट हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफ़गान तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें बदस्तूर गर्म हैं, जो इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा हैं। रिपोर्ट में तालिबान के इस दावे को नाकाबिल एतबार करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा और जमात अंसारुल्लाह अफगानिस्तान में फ़ाल है और टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले कर चुकी है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान क़यादत के अहकामात पूरे मुल्क में मौसर तौर पर नाफिज नहीं हो रहे हैं, जबकि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, ख़वातीन और अक़लियतों के खिलाफ सख्त रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मसाइल हल न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ढाका बांग्लादेश में सियासी तंजीम से वाबस्ता नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज और हंगामे फूट पड़े हैं। अबूरी हुकूमत ने उनकी मौत पर एक रोज़ा शोक का ऐलान किया है। हादी को गुज़श्ता हफ्ते ढाका में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। वो इलाज के दौरान जाँबर ना हो सके थे। उनकी हलाकत के बाद दारुल हुकूमत में मुजाहरे, तशद्दुद के वाक़यात और एक अखबार के दफ्तर को नजर आतिश किए जाने की इत्तलात सामने आई हैं। सियासी जमातों ने हुकूमत से कातिलों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। हुकूमत के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है और मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की। वजारत कानून और इंसाफ ने माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी को बाज़ाबता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर जनरल ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में मैनहोल 1 मंसूबे के अपग्रेडेशन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने कराची ता रोहड़ी मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग जुलाई 2026 में करने पर इत्तफाक किया। वफ्द को ML1 पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर रेलवे ने मंसूबे को कौमी मईशत के लिए अहम करार दिया।
वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत चमन के ताजों और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पाक अफगान सरहद चमन क्रॉसिंग की बार बार और तवील बंदिश के बायस दरपेश मुश्किलात पर तफसीली गौर किया गया। शुरका ने बताया कि सरहद की बंदिश से ताजरों को माली नुकसान, बरामदात में रुकावट और मकामी आबादी को शदीद माशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर तिजारत ने स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और यकीन दिलाया कि वज़ारत तिजारत कानूनी और जायज़ सरहदी तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख ने सितारा इम्तियाज़ के हामिल मारूफ सनतकार तारिक रफ़ी से मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कैसर अहमद शेख ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और आसान कारोबार एक्ट के जरिए सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर रोशनी डाली। उन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सरमायाकारी के फ़रोग़ और सहूलतकारी के अज़्म का भी अयादा किया। और मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़। अब कड़ी मॉनिटरिंग की आग पंजाब के हर शहर पर होगी। पंजाब में खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेहड़ी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया है। वज़ीर आला डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम की गई है। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ वर्चुअल टूर के जरिए पंजाब के हर अफसर और अहलकार की हाज़िरी और कारकर्दगी भी चेक करेंगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहला KPI डैश बोर्ड फाल हो गया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और शैखुरोनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिवीजन और अजला में भी CMIT के यूनिट्स कायम होंगे। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां 5 साल से बंद कौमी असासा जामशोर और जॉइंट वेंचर लिमिटेड का प्लांट दोबारा फाल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक इस मनसूबे की बहाली से सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए की बचत और टैक्स की मद में 3 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। SAFC के मौसर इकदाम के बायस तवील तातुल का खात्मा हुआ, जिससे सुई सदरन गैस कंपनी को भी नुमाया माली फायदा होगा। प्लांट की बहाली से तकरीबन 5000 बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे, जबकि मुकामी पैदावार से लाखों घरानों की तवानाई जरूरियात पूरी की जा सकेंगी। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तिजारत के फरोग और तिजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के जदीद स्कैनर सिस्टम्स नस्ब कर दिए गए हैं। ये स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सोस्ट ड्राई पोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गबत बार्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं, जो सिर्फ 22 सेकंड्स में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। NLC के मुताबिक जदीद स्कैनर्स की तनसीब से क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेज़ी आएगी और कंटेनर्स के इंतजार का वक्त वाज़ेह तौर पर कम हो जाएगा। मसनूई ज़हानत से लैस ये स्कैनर्स तिजारती सामान का बारीक बीनी से तज्जिया करते हैं, जिससे शफाफियत में इजाफा होगा। हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और चीन और ईरान के साथ बढ़ते हुए तिजारती रवाबित के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। उन पहले लोगों में था जो यहाँ पर आया था, उस वक्त मैं वज़ीर दाखिला था, तो मुझे सबसे पहले उन शोहदा के अजीम और मुक़द्दस खून की याद सताती है और ये अहद मेरे दिल में आता है कि दहशतगर्द जो ये चाहते थे कि ये पुलिस एकेडमी बंद हो जाए, आज उस पुलिस एकेडमी में मेरे बहादुर बेटे तो ट्रेनिंग ले ही रहे हैं, मेरी बहादुर बेटियां जिस मजबूत इरादे से, जिस दलेरी से आज यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और आपसे पहले जिन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं और जिस बहादुरी और दलेरी से दे रहे हैं, दहशतगर्दों का वो ख्वाब चकनाचूर हुआ, रियासत की मजबूती जो है वो सामने आई है। और मैं आज फिर इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बंदूक के ज़ोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं, आप बंदूक के ज़ोर पर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं,
آپ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کی ناکام رہے گی. ریاست یا تھکنے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ بہادر سپاہی آپ کے ہر اس ناپاک ارادے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, یہ پیغام میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ریئلائزیشن کے ساتھ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھٹکتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں تو اس ریاست کا دل ہمیشہ اتنا بڑا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ راستے وہ کھلے ہوئے ہیں کہ آپ امن کی طرف لوٹ آئیں اور ریاست کے کارآمد شہری بنیں. اگر آپ ریاست کے کارآمد شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنے کی جو خواہش ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, اور آپ کا انجام بھی ان کی طرح ہوگا جو آپ سے پہلے آپ کے ساتھ ہی جہنم وصل ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ بلوچستان کی حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, بلوچستان کی پولیس ہو, پاکستان کی افواج ہوں, فرنٹیئر کور ہو, ہم بالکل تیار ہیں اس چیلنج کو سامنے سے لینے کے لیے. ہم ایک لمحہ بھی گھبرائیں گے نہیں, ہم ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی بندوق کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ نے ایس پی کے یونیورسٹی میں دھماکہ کیا, آپ کا خیال تھا کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں گی, آج اس کی انرولمنٹ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. آپ کا خیال تھا آپ پروفیسر ناظمہ طالب صاحبہ کو شہید کریں گے اور یہاں پر تدریس کا عمل رک جائے گا, وہ تدریس کا عمل آج بھی جاری ہے. آپ کا خیال تھا کہ آپ پولیس ٹریننگ سینٹر میں حملہ کر کے پولیس ٹریننگ کو رکوا دیں گے, آج بھی جاری ہے. آپ کا خیال تھا کہ آپ پولیس کی لائنز پہ حملہ کر کے شہید بلوں کو مار دیں گے اور اس کے بعد یہ پولیس لائن ویران ہوگی, آج بھی وہ پولیس لائن آباد ہے. آپ کا خیال تھا کہ آپ آئی جی پولیس کے گھر پہ حملہ کر کے یہاں پر آئی جی پولیس کا جو رول ہے اس کو ختم کر دیں گے, آج بھی آئی جی پولیس کا گھر اسی مقام پر موجود ہے. آپ کا خیال تھا کہ آپ سعید وزیر کے گھر پہ حملہ کر کے یہ میسج دیں گے کہ بلوچستان کے پولیس میں لوگ جو ہیں وہ فرائض انجام نہیں دیں گے, آج بھی سعید وزیر ایک جگہ پر ڈی آئی جی ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ریاست مضبوط چٹان کی طرح کھڑی رہے گی اور تا قیامت بننے کے لیے ریاست کھڑی رہے گی, اور اس پاکستان کو ایک انچ نقصان کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی ہے. میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ آج شاید یہ پاپولر ڈیسیجن نہیں ہے, آج اس کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ اس طریقے سے بلوچستان کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی پاپولر فیصلے نہیں کرتے ہیں, وہ ہمیشہ درست فیصلے کرتے ہیں. آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج پورا بلوچستان جس کی کنورژن B2 ایریا ہو چکی ہے, آج پورے بلوچستان کو ایریا میں کنورٹ کیا جا چکا ہے. تو یہ صرف ایک مضبوط فیصلہ نہیں ہے, یہ بلوچستان پولیس کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے, وہیں ذمہ داری کی بات بھی ہے. آپ پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے صفحہ اول کا کردار ادا کرتے ہوئے پورے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں, آرگنائزڈ کرائم کی سچویشن میں, ٹیررزم کی سچویشن میں ہمارے اس فیصلے کو درست ثابت کرنا ہے اور بلوچستان کے عوام کی وہ خدمت کرنی ہے جو خدمت وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کسی بھی صورت میں بلوچستان کی جو عوام ہے, بلوچستان کے جو شہری ہیں, آج آپ کے مضبوط کندھوں پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ نے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, بلوچستان کے لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرنی ہے, بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جا رہی ہے. تو مجھے یہ پورا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پودا آج لگایا گیا ہے یہ ایک تناور درخت ہوگا اور اس کے چھاؤں میں بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ سکھ کا اور چین کا سانس لیں گے, اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا یہ جو فیصلہ ہے
ये वक्त आने पे एक बेहतरीन फैसला साबित होगा और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको बेहतरीन फैसला साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान पुलिस की 104वीं पासिंग आउट परेड से उनका खिताब। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान पुलिस अमन के लिए कुर्बानियां दे रही है, दहशतगर्दों को उनके मज़मूम अज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगे, किसी को बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, जिला नारोवाल में शदीद धुंध के बायस पैदा होने वाली मुमकिन खतरात सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस ने बाहमी इश्तराक से जामे और मुनज़्ज़म इक़दाम शुरू कर दिए हैं। शकरगढ़ से मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर शकरगढ़ में भी दौरान सफर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान, DSP ट्रैफिक जवेद न्यू और RTS सेक्रेटरी चौधरी एहसान उल हक की सरबराही में गाड़ियों, ट्रालियों, रिक्शों पर रिफ्लेक्टिंग पेपर लगाए गए ताकि धुंध के बायस कम निगाह मरबी गाड़ियां दूर से नुमाया नजर आ सकें। उन्होंने गाड़ी मालकान को बैकलाइट दुरुस्त रखने और ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करने की भी हिदायत की। ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और लोड रक्शे, इनके पीछे बैक लाइट नहीं होती, इसकी वजह से हम इसको स्टिकर लगा रहे हैं, रिफ्लेक्टर स्टिकर। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का ये विजन है कि मुसाफिरों को दौरान सफ़र तमाम तर उनकी हिफाजत उसको इंश्योर करना है। आजकल चूँकि धुंध का सीज़न है, धुंध के सीज़न के दौरान ज़्यादातर ऐसी गाड़ियाँ जिनकी बैक लाइट्स ख़राब होती हैं, जिनके पीछे कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं होते, वो गाड़ियाँ अमूमी तौर पर ट्रैफिक हादसात की बायस बनती हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक धुंध के दौरान एहतियाती तदाबीर का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा ताकि अवाम की माल जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मोहम्मद रमज़ान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। नाज़रीन, पसरूर शहर और मज़ाफ़ाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध की शिद्दत में इजाफे के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना कैसर हयात की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल, पसरूर शहर समेत चुंडा, बनियाना, किंगरा, किला कालरवाला और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बायस हद निगाह चंद मीटर तक महदूद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना है। जबकि मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है और ड्राइवर की जानिब से काफलों की सूरत में सफ़र इख्तियार किया जा रहा है। जबकि ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ड्राइविंग के दौरान फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ साथ रफ्तार कम रखने, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतने और दीगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत भी दी जा रही है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से धुंध में इजाफे के बायस सर्कल पसरूर पुलिस की को सड़कों पर मौसर गश्त करने और रेस्क्यू 1112 को किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए हिदायत जारी की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पसरूर में अगले चंद रोज तक मजीद धुंध छाई रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। पसरूर के बाद रुख करेंगे ज़िला उकाड़ा का, जहां धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील चौधरी फताउल्लाह नवाज भुट्टा की रिपोर्ट में। आज डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के तीनों तहसीलों में आज 4 रोज के बाद कदरे जो मौसम है वो खुशगवार हुआ चाहता है। हद निगाह नहायत कम होती है शदीद धुंध के सबब। तो लोगों को चाहिए, मुसाफिरों को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो एक कॉन्वाय की सूरत में जो है वो ज़रूरी सफ़र करें और गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे गुरेज किया जाए ताकि हादसा से जो है वो बचा जा सके। मोटर बाइक से चलाने वाले लोग हैं उनके लिए ये कहना जो ट्रैफिक पुलिस है उनका है कि रिफ्लेक्शन वाली जो जैकेट है उसको इस्तेमाल किया जाए और नहायत कम स्पीड जो है वो रखी जाए, सुस्त रवि जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से, ट्रैफिक हादसे से बचा जा सके। जी। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा बलूचिस्तान के चंद अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। जबकि पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहा। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी अजला में धुंध और स्मोक छाई रही। मुल्क के बड़े शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 7,
ناظرین، آج دنیا بھر میں آلودگی سے متاثرہ بڑے شہروں کی فہرست آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پاکستان کے شہر لاہور کا پہلا نمبر ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 393 ریکارڈ کیا گیا۔ کابل 277 کے ساتھ دوسرے، بھارتی دارالحکومت دہلی 270 کے ساتھ تیسرے نمبر پر، بیجنگ 230 کے ساتھ چوتھے، جینگڈو 205 کے ساتھ پانچویں اور چونگ چنگ 181 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود رہا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ قدیر۔ امریکی اور روسی حکام کے درمیان یوکرین جنگ پر مذاکرات میامی میں ہوں گے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اپنے مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ماسکو میں وزارت دفاع کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ روسی افواج کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ یوکرین پر روسی فضائیہ کے تازہ حملے میں 30 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس 2026 میں ان کے ملک کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یورپی ممالک نے روس کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے مشترکہ دفاعی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے یوکرین کے لیے 90 ارب یورو کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے، جو 2026-2027 کے دوران آسان شرائط پر بلا معاوضہ قرض کے طور پر دی جائے گی، جس کا مقصد یوکرین کی دفاعی صلاحیتیں مضبوط کرنا اور عوامی خدمات جاری رکھنا ہے۔ روس کے منجمد اثاثے، جن کی مالیت تقریباً 210 ارب یورو ہے، قانونی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے، اس لیے قرض یورپی یونین کے بجٹ اور بانڈ مارکیٹ سے حاصل کیا جائے گا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اسے یوکرین کے مستقبل کی مضبوط ضمانت قرار دیا ہے، جبکہ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اقدام روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی حمایت کا واضح اشارہ ہے۔ یورپی یونین نے یوکرین کے لیے 90 ارب یورو کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے، جو 2026-27 کے دوران آسان شرائط پر بلا معاوضہ قرض کے طور پر دی جائے گی۔ اس خبر سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ امریکی فوج نے آج مشرقی بحر الکاہل میں 2 بحری جہازوں پر حملہ کیا، جن پر مبینہ طور پر منشیات اسمگلنگ کا شبہ تھا۔ اس کارروائی میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی سدرن کمان کے مطابق یہ حملے بین الاقوامی پانیوں میں قانون نافذ کرنے اور منشیات اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے گئے۔ اسی دوران امریکی بحریہ نے ایک نیا جنگی ڈرون بھی سمندر میں لانچ کیا، جس سے امریکی فوج کی بحری طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا عندیہ ملتا ہے۔ یہ کارروائیاں امریکی فوج کی عالمی سطح پر سرکردہ موجودگی اور سمندری سیکیورٹی کے عزم کی عکاس ہیں۔ ازبکستان میں جاری تیسری نشان ثانیہ کا عمل نہ صرف ملک کی سماجی، تعلیمی اور معاشی ترقی کی نئی مثال بن رہا ہے، بلکہ اس کے اثرات علاقائی تعاون کے فروغ میں بھی نمایاں دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں ازبکستان سے ہماری نمائندہ فرحانہ خان۔ ازبکستان کی قیادت کی جانب سے متعارف کرایا گیا تیسری نشاط ثانیہ کا تصور علم، تحقیق، جدت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ پر مبنی ہے۔ اس ویژن کے تحت ازبکستان خطے میں تعلیم، معیشت اور سائنسی ترقی کا مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات تاریخی، ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر استوار ہیں۔ دونوں ممالک اس مشترکہ ورثے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی، ٹرانسپورٹ اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ازبکستان کی تیسری نشاط ثانیہ کے ویژن سے پاکستان بھی استفادہ کر سکتا ہے، خصوصاً اعلیٰ تعلیم، سائنسی تحقیق، IT میں مشترکہ منصوبوں کے ذریعے تعاون کو نئی جہت دی جا سکتی ہے۔ ازبکستان میں آج کل جہاں کہیں جائیں تو آپ کو تیسری نشاط ثانیہ کے بارے میں گفتگو ملتی ہے۔ جو موجودہ صدر ہیں شفقت مرزویف، ان کی پوری توجہ اس بات پر ہے کہ جو نوجوان، جو ان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کی تعلیم، صحت اور جو سائنسی تعلیم ہے اس طرف ان کی توجہ دلائی جائے۔ اور ماضی میں کیونکہ جو پہلی نشاط ثانیہ تھی جس میں ابن سینا اور البیرونی اور الخوارزمی جیسے عظیم نام ہیں، تو جو شاندار ماضی ہے اس کو جوڑا جائے ایک شاندار مستقبل کے ساتھ۔ پاکستان خاص طور پر معیشت، تجارت، زراعت اور جو انفراسٹرکچر اور IT ان شعبوں میں خواہاں ہے ازبکستان کے ساتھ، اور ازبکستان بھی اس حوالے سے خاص طور پر جو ان کی خصوصی جو
पैदावार हैं, मिनरल्स हैं, सोना है, इन तमाम हवालों से वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ उनकी तिजारत और ताउन बढ़े। उज़्बेकिस्तान का तीसरी निशात सानिया का तस्वुर खित्ते में इल्म और तरक्की का नया बाब है। पाकिस्तान के साथ ताउन इस विजन को मजीद मजबूत बनाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को वसअत देने से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में भी अहम किरदार अदा करेगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, उज़्बेकिस्तान। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में क्रिसमस की शॉपिंग करने वाले अफराद का रश बढ़ गया है। एथेंस के नवाब में वाक़ स्मार्ट सिटी में तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स एक ही छत तले मौजूद हैं, जहां लोग क्रिसमस की शॉपिंग करने के साथ साथ खूबसूरत और पुरफज़ा माहौल को भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ जफ़र साही से। जी जफ़र। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यूनानी दारुल हुकूमत के बिल्कुल करीब एक बड़ा खूबसूरत इलाका स्मार्ट पार्क, वहाँ मैं मौजूद हूँ और इस वक्त क्रिसमस की आमद है और लोगों की हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो शॉपिंग के लिए इस वक्त इस स्मार्ट पार्क में मौजूद है। यहाँ दुनिया के तमाम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लोग अपनी अपनी जो फेवरेट उनके ब्रांड हैं उनमें वो शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं और क्रिसमस की जो शॉपिंग है उसकी ये जो है तैयारियाँ वो जारी हैं। लोग आ रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो आए हैं और इंतहाई खूबसूरती के साथ इस स्मार्ट पार्क को जो है वो सजाया गया है। और एथेंस से ये थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो अपनी गाड़ियों पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी यहाँ आ रही है, उसका इस्तेमाल करते हुए लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आप भी आपके पास वक्त हो तो लाजमी है आप संडे और सैटरडे को यहाँ आए तो यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकेंगे और क्रिसमस के जो रंग है वो भी इस पार्क में आपको नजर आएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान के बड़े रेस्तोरां दावत मजबूर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताह सिफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी नजम नवाज साकिब ने सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि पाकिस्तान पकवान न सिर्फ जायके में मुनफरिद हैं बल्कि सऊदी अरब में पाकिस्तान की सकाफत और मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने का जरिया भी हैं। रेस्टोरेंट के मुंतज़मीन के मुताबिक दावत मजबूर का मकसद पाकिस्तानी मेहमान नवाजी और रिवायती जायकों को सऊदी अवाम तक पहुँचाना है। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होप ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़ेर-ए-तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पुर्तगाल और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पुर्तगाल में पाकिस्तानी सफ़ीर आयशा फारूकी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की मईशत, सिफारती ताल्लुकात और पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिफारत खाना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशां है और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी पाकिस्तान का क़ीमती असासा हैं। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान के फलाही इक़दामात और कम्युनिटी मसाइल के हल को खुशाइंद करार दिया। राज़ीन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल मंडी बहाउद्दीन का वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़हूरुल हक और कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी के हमरा दौरा किया। उन्होंने एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी और क्लासरूम्स का विजिट किया और तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने यूनिवर्सिटी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्तस जगह का भी मुआयना किया और कहा कि हुकूमत ने तलबा के लिए जदीद तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हैं। टूर गाइड ट्रेनर्स के मैनुअल के लिए 2 रोज़ा वैलिडेशन वर्कशॉप मरी में इख्तिताम पजीर हो गई है। वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत राना आरिफ इकबाल थे। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के शोबा सियाहत के ज़ेर इंतज़ाम 2 रोज़ा वर्कशॉप में पंजाब के कई महकमों, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के माहिरीन तालीम ने तकनीकी सेशंस और ग्रुप डिस्कशन में शिरकत की। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि तरबियतकारों को माहौलियाती जिम्मेदारी, कम्युनिटी की फलाह बहबूद और लचकदार सियाहत के तरीक़ों को फ़रोग़ देने के लिए दरकार इल्म और आलात से लैस किया जाए। नाज़रीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में ज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है। सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हर वक्त बर वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. درست ہر وقت بر وقت. آپ اذان جمعہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. خبرنامے میں شامل کرتے ہیں مزید خبریں. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی بنیادی سہولیات کی کمی پر عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ صحت اور تعلیم کے شعبے زبوں حالی کا شکار ہیں. سرکاری اسپتال خستہ حال ہیں اور علاج میں تاخیر معمول بن چکی ہے. سکولز اور کالجز میں تعلیمی معیار گر رہا ہے اور نوجوان روزگار کے لیے دوسرے شہروں کی طرف جانے پر مجبور ہیں. عوام نے صوبائی حکومت سے تعلیم، صحت اور روزگار پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی ترقی ملک کی مجموعی ترقی کے لیے ضروری ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے عوامی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ون ونڈو آپریشن کے تحت جدید سہولیات سے آراستہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ ایبٹ آباد کا افتتاح کر دیا. جدید ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں شہریوں کو ایک ہی چھت تلے لائسنس کے حصول سے متعلق تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. برانچ میں ٹوکن سسٹم، آن لائن ڈیٹا انٹری، بائیو میٹرک تصدیق، لرنر لائسنس، ٹیسٹ، تجدید اور نئے لائسنس کا اجرا شامل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں چنیوٹ پولیس نے شہریوں کے محفوظ سفر کے لیے ٹریفک آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا. کیمپ میں ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف اور ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے شرکت کی. شہریوں کو موٹر سائیکل پر ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور ہیلمٹ اور سائیڈ ویو مررز تقسیم کیے گئے. کیمپ کے دوران موٹر سائیکلز کی لائٹس کی مرمت اور ٹریفک قوانین پر پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے. ڈی پی او نے شہریوں سے ٹریفک قوانین پر عمل کی اپیل کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ سے روکنے کی ہدایت دی اور بتایا کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا. بغیر کسی نظام کے اندر کیا تھا اور سزا یافتہ بھی نہیں تھے.
कहते थे इनसे एसी निकाल लें, इनको फ्रिज न दें दवाइयों के लिए, इनको टीवी क्यों दी हुई है, इनको जो है वो बाकी सहूलियात 7 स्टार होटल क्यों दी हुई हैं, सब मैं चाहता हूँ कि वापस हों। तो जो उनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक इनके साथ ट्रीट किया जाए, ताकि क्योंकि उनकी ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश तो पंजाब हुकूमत या हमारे जेल के जो जेलर हैं वो जेल मैनुअल के मुताबिक वो पूरी कर सकते हैं। जहाँ तक आपने गवर्नर राज की बात की, मैंने हमेशा ये बात की है कि गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के ऊपर मुनहसर है। अगर हमारी सूबाई हुकूमत वफाकी इदारों के साथ, हमारे रियासती इदारों के साथ अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है तो हमें गवर्नर राज लगाने की क्या ज़रूरत है वफाकी हुकूमत को। अगर वो ये कहेंगे कि आप उन लोगों के साथ बातचीत करें जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, और जो आके हमारे बच्चों को शहीद करना चाहते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को शहीद करना चाहते हैं, जो कैड कॉलेज पे हमला कर रहे हैं, जो FC हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं, जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला कर रहे हैं, जो फौज के कॉन्वॉय पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, यहाँ तक कि वकीलों पे हमला करते हैं। गवर्नर KP फैसल नाज़रीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हुई हक और सच की फतह दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है।